نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مختصر الترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 98 ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر نماز درست نکلی تو تمام اعمال درست ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو تمام اعمال خراب ہوں گے. طبرانی اوسط کی روایت ہے. پہلی بات جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اعمال کا محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا. سیدنا عمر کہا کرتے تھے اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے. حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حساب تو ہونا ہے اور کرنے والا کام ایک ہی ہے، تیاری کرنے. اللہ تعالی ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے جس چیز کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہے. نماز شہادتین کے بعد دوسرا اہم رکن نماز ہے. حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے جس کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہے. حقوق العباد میں سے سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ خون کا حساب ہوگا، یعنی قتل کا. یہ مسلم کی حدیث ہے 1678 نمبر پر. حدیث کے ریفرنس سے غور کیجئے گا. اگر نماز درست نکلی، کیا نماز غلط بھی ہو سکتی ہے؟ اگر نماز درست نکلی تو تمام اعمال درست ہوں گے. کیا نماز کے درست نکلنے کی وجہ سے سارے اعمال درست ہو جائیں گے؟ اس سے کیا مراد ہے یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور اگر نماز خراب ہوئی تو تمام اعمال خراب ہوں گے. یہ والی بات بہت توجہ طلب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز کے درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہی نماز درست ہوگی جو اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. مطلب یہ ہے اخلاص کے بغیر جس مقصد کے لیے بھی نماز پڑھی جائے گی یا کوئی بھی نیک عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول نہیں. اور اخلاص کے بغیر وہی نماز نیکی برباد گناہ لازم والا معاملہ ہو جائے گا. نماز کی نیکی نیکی نہیں سمجھی جائے گی. پھر وہی نماز شرک کنسیڈر کی جائے گی. تو اخلاص کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز جو سنت رسول کے مطابق ادا کی گئی، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں یہ چیز بھی توجہ طلب ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، مسلمان نماز کیوں ادا کرتے ہیں. یہ تو سب جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے. آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور وہاں پر نماز کا تحفہ دیا. لیکن اس سے زیادہ بڑی بات ہے نماز کے بارے میں جو ہمارے رب نے بتائی ہے. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 ہے. رب العزت کا فرمان ہے اقیم الصلاۃ لذکری،
मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला का जिक्र छोटी चीज नहीं है। कुरान हमें ये बताता है वला जिक्रुल्लाही अकबर, अल्लाह की याद तो बहुत बड़ी चीज है। देखिए, आपके मोबाइल की एक मेमोरी है, आपकी जितने गैजेट्स हैं उनकी मेमोरी है। और कभी ऐसा होता है ना, मेमोरी फुल हो जाए तो आगे आप कोई भी चीज प्रोसेस नहीं कर सकते। फिर आप ऐसा करते हैं कि जो फालतू चीजें होती हैं उनको डिलीट कर देते हैं ताकि अ, आप जो काम करना चाहते हैं उसको आसानी के साथ कर सकें। आप जिंदगी में देखते हैं, आप अपने प्यारों को याद करते हैं। माँ की मोहब्बत एक एग्जाम्पलरी चीज है। अल्लाह ताला 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। ये एक मिसाल बड़ी ट्रू है, सच्ची बात है कि जितनी एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, अल्लाह ताला 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। माँ अपने बच्चे को सच्चे दिल से याद करती है। सवाल ये पैदा होता है, उसे इस याद से क्या मिलता है जब बच्चा दूर चला जाए। आप एक नए पैदा होने वाले बेबी को देखिए, माँ के जहन से वो बच्चा नहीं निकलता, उसकी यादों में रहता है हर दम। और अगर आप देखें तो हम अपने प्यारों को याद करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की मेमोरी, इंसान के अंदर ये सलाहियत इसीलिए रखी है कि इंसान चीजों को याद रख सके। कभी कभी यादें हमें फायदा देती, कभी कभी नुकसान देती हैं। तो किसी ने कहा यादें माजी अजाब है यारब। तो बाज़ औक़ात इंसान की यादें उसके लिए बहुत ज्यादा कर्बनाक भी हो जाती हैं। लेकिन बात यह है कि हमें इस बात से इनकार नहीं है कि हमारे अंदर यादें होती हैं। लेकिन अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज है, अल्लाह ताला की याद, क्योंकि उसने हमें बनाया है। और मुझे ये बात इतनी प्यारी लगती है, शेख सौलेह इब्न उसैमीन अकीदा वास्तिया के की शरह के मुकदमे में लिखते हैं, हम सब अल्लाह ताला के लिए पैदा किए गए। हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है, ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताजीम के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाएं। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के मां सिवा किसी और मकसद के लिए पैदा नहीं किया। हर चीज की जिंदगी का एक मकसद होता है। आपके सामने टेबल है, आपके हाथ में पेन है, आपके पास नोटबुक है। इसी तरह से जैसे आपकी आंखें, आप आंखों से देखते हैं, कलम से लिखते हैं, आप कुर्सी पे बैठते हैं, मकसद है ना हर एक चीज का। हमारी जिंदगी का एक मकसद है। हमें अल्लाह ताला ने अपने लिए पैदा किया, हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इसलिए हमें उस मकसद को पूरा करना है। देखिए, जो चीज अपना मकसद पूरा नहीं करती वो चीज बेकार हो जाती है, नाकारा हो जाती है। हम भी अगर अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा नहीं करेंगे तो नाकारा चीजों की बहुत बड़े डस्टबिन जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने इसको एक और एंड से देखिएगा। दुनिया में जितनी चीजें हैं अपनी असल की तरफ लौटती हैं। आप आसमान पे चमकने वाली बिजलियों को देखिए, उनकी असल आसमान नहीं है, उनकी असल जमीन है। जब हम ये देखते हैं कि आसमान पर बादल गरजें, बिजलियां चमके, तो सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। कभी आपको डर लगा है? जब बहुत जोर से बिजली चमके, बादल गरजे, खौफजदा हो जाता है ना इंसान। ये बड़ा नेचुरल है इंसान का खौफजदा होना। और इसके पीछे तजुर्बात भी हैं, इल्म भी है कि बिजलियां जब तेज चमकती हैं,
बादल गरजते हैं तो सम टाइम्स बिजलियां हर चीज को चीर फाड़ के जला के राख करके जमीन के मरकज के अंदर उतर जाती, क्योंकि उनकी असल जमीन में है। याद रखिएगा, हमारी असल जमीन में नहीं है। हमारा बदन जमीन की मट्टी से बना है, लेकिन हमारी रूह अल्लाह ताला ने उसके बारे में इरशाद फरमाया, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिर रूही, मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी है। अल्लाह ताला ने हम में अपनी रूह फूंकी है। हमारी रूह आसमानी चीज है, जिसने हम में अपनी रूह फूंकी है ना, हमारा वजूद असलन हम उसे पहचाने, ये जरूरत कितनी बार एक दिन में पेश आती है, हमें पैदा करने वाले से ज्यादा कौन जान सकता है। हमारे लिए 5 औकात जो नमाज के लिए मुकर्रर किए गए, वो हमारी जरूरत के मुताबिक मुकर्रर किए गए। जब हम सुबह उठते हैं, आपने कभी देखा चिड़िया को भी भूख लगती है, बिल्ली को भी लगती है। आप जानवरों को देखें, परिंदों को देखें, हशरात को देखें और इंसानों को देखें, सब जब सुबह बेदार होते हैं तो भूखे होते हैं। सबको नाश्ते की जरूरत है, हर एक का नाश्ता फर्क है। कभी कभी आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा, शेर को भूख लगे तो कभी हिरन की शामत आ जा, कभी किसी बड़े जानवर की भी शामत आ जाती, लेकिन भाई उसने नाश्ता करना है। अब वो नाश्ता किसी जानवर का भी हो सकता है। और फिर आप देखिए कि छोटी छोटी चींटियां, नजर न आने वाले जो हशरात हैं, सबको भूख लगी है। हर एक की नेचर डिफरेंट है, हर एक उस वक्त अपनी ग़िज़ा की तलाश में है। जैसे सब लोगों का तो जिस्म है ना, और जिस्मानी ग़िज़ा उन्हें मिलती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया है, हमारा जिस्म भी है, हमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह भी फूंकी है, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल भी अता की है। तो हमें सिर्फ हमारे जिस्म को ग़िज़ा नहीं चाहिए, हमारी रूह को भी ग़िज़ा चाहिए। कितनी अजीब बात लगेगी अगर आप ये देखें कि एक ग्लास या एक जार है जिसका ये साइज है, ठीक है, फिजिकली उसका ये साइज है, और आप उसे किसी को ऑफर करते हैं या किसी को कुछ डाल के देना चाहते हैं, एक कतरा डाल के दे दें, उस कतरे से उस जार का पिंदा भी नहीं छुपता, बस सिर्फ एक डॉट सा लगता है। कभी आप गौर करके देखें तो आपको फील होगा, इस बदन के अंदर जो हमारी रूह है, कहीं वो भी तो सुकड़ के सिमट के इतनी सी तो नहीं रह गई, क्योंकि बढ़ती तो वही चीज है जिसको ग़िज़ा मिलती है। तो रूह की ग़िज़ा अल्लाह ताला की याद है, और अल्लाह ताला ने फरमाया, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक को नमाज में रख दिया गया। हज़रत बिलाल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, बिलाल उठो, हमारी राहत का सामान करो, यानी नमाज के लिए तैयारी करनी। नमाज दीन का सुतून है, नमाज हम पर फर्ज है, नमाज हमारी जरूरत है। नमाज ही हमें मुतवाज़न जिंदगी गुजारने के लिए तैयार करती, इसलिए कि मुतवाज़न जिंदगी के लिए सिर्फ बदन का सही होना काफी नहीं है, उसके साथ रूह और उसके साथ अक्ल का भी उसी तरह से डेवलप होना जरूरी है। और अल्लाह ताला की याद के बगैर कोई दूसरा तरीका नहीं है, और नमाज अल्लाह की याद का बेहतरीन तरीका है। और नमाज का जो सजदा है, उसके बारे में रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और करीब हो जाओ। तो नमाज कुर्बे इलाही का जरिया है, अल्लाह ताला के करीब होने का।
अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के कुछ अरसे के बाद ही आप पर नमाज को फर्ज करार दे दिया गया था। यानी ऐसा नहीं है कि आपने मिराज के बाद ही नमाज अदा की। हजरत खदीजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में भी नमाज अदा करते थे, लेकिन मुसलमानों पर बाकायदा तौर पर नमाज तब फर्ज हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए तशरीफ ले गए। तो नमाज जो है ईमान कबूल करने के बाद, दीन को कबूल करने के बाद पहला अमल है, यानी शहादतैन के बाद पहला अमल है। और रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो कुछ हमने उन्हें रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। कुरान मजीद में बहुत सी आयात हैं जिससे हमें नमाज के बारे में पता चलता है। मिसाल के तौर पर एक आयत मैं जरूर आपके सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि आपके सामने क्लैरिटी होगी। जो काम आप कर रहे हो उसको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन करने वाली चीज नमाज है। वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबी, और जो लोग किताबुल्लाह को मजबूती से थामते हैं, यानी अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, उस पर गौर व फिक्र करते हैं, उसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो क्या करते हैं? वह अक़ामुस्सलाह, और उन्होंने नमाज कायम की। कुरान को मजबूती से पकड़ना और नमाज कायम करना, ये दो ऐसे अमल हैं जिसके बारे में रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन, बेशक हम इस्लाह करने वालों का, नेकी करने वालों का अजर कभी जाया नहीं करते। ये सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 170 है। तो नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। नमाज छोड़ देने का मतलब यह है कि किसी ने इस्लाम ही को तर्क कर दिया। फिर उसके अपने दुनिया में तो शायद उसे ना कभी फील हो कि मेरी जिंदगी में कोई फर्क आया है, इसलिए कि उसकी पैदाइश जब हुई, उसका जब नाम दर्ज करवाया गया तो मुसलमान के तौर पर करवाया गया, लेकिन अल्लाह के यहाँ नमाज अदा न करने वाला मुसलमान नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। नमाज ही मुसलमान की पहचान करवाती है। यही वो मायार है जिससे मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क का पता चलता है। यही वो अमल है जिसका कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा, और अगर नमाज दुरुस्त निकली तो बाकी अमाल दुरुस्त निकलेंगे, और अगर नमाज दुरुस्त न निकली तो सब अमाल जाया हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सईदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की है, कयामत के दिन लोगों से उनके अमाल के बारे में, जिस चीज के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा वो नमाज होगी। हमारा रब अपने फरिश्तों से फरमाएगा, हालांकि वो खूब जानता है कि मेरे बंदे की नमाज को देखो, वो पूरी है या उसमें कोई कमी है। अगर पूरी होगी तो सवाब लिखा जाएगा, और अगर कमी होगी तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, देखो मेरे बंदे के पास कुछ नफिल है। अगर नफल होगी यानी नवाफिल होंगे तो फरमाएगा मेरे बंदे के फराइज को, फर्ज को उसके नफलों से पूरा कर दो। फिर तमाम अमाल का यही हाल होगा। ये अबू दाऊद की 864 नंबर रिवायत है। क्या आप जानते हैं कि यही नमाज है जिस पर हमारी कामयाबी और नाकामी का दारोमदार है। कैन यू इमेजिन कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो दुनिया में ही अल्लाह ताला की तरफ से फेल हो गया, वो नामुराद हो गया, उसकी मुराद बर आने के सारे चांसेस खत्म हो गए। जिसके पास
नमाज होगी वो हमेशा के लिए कामयाब होकर जन्नतों में चला जाएगा, और जिसके पास नमाज नहीं होगी, क्या आपके पास नमाज है? ये ऐसी नमाज है जिसे आप अपने रब के सामने पेश कर सकते हो, या अल्लाह ये मेरी ऐसी नमाज है जो आपकी शान के लायक है। यकीनन इस पर गौर करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। हम नमाज अदा तो करते हैं, लेकिन क्या वाकई वो अल्लाह ताला के शायाने शान नमाजें हैं? जिसके पास नमाज नहीं होगी वो हमेशा के लिए रुस्वा होकर जहन्नुम की आग में जलेगा। अस्तगफिरुल्लाह। या अरहमर रहीमीन, हमें नमाज की मोहब्बत अता कीजिए, हमें सजदों की मोहब्बत अता कीजिए, और हमें खुशू वाली नमाजें नसीब फरमा दीजिए।